Hello children, welcome to your EVS video class. Children, I'm sure you all are watching the videos regularly and are completing your exercises also. I know that recently you have attempted your evaluations, your assessments and आपने सारा रिवाइज किया है और अब आगे जो इवैल्यूएशन 2 है उसके लिए आपको तैयार रहना है। तो उसके लिए आपको पढ़ाई करनी है, तो वीडियो भी देखना जरूरी है और जो चीजें आपको समझ में नहीं आती हैं वो आप अपने डाउट्स तो क्लियर करते ही हैं। चिल्ड्रन, यू मस्ट बी नोइंग दैट वी आर डूइंग चैप्टर 16 ऑफ योर EVS टेक्स्ट बुक and the name of the chapter is Our Celestial Neighbors. Children, explanation of this chapter we have already completed. I have explained the chapter, I have revised the chapter and we had done the exercises also. जो chapter के पीछे की जो exercises थी, choosing the correct option, true, false, then question answers, etc. that we did. The exercises that are given at the end of the chapter that we have already completed. Now in today's video we will be doing additional questions that are from the content of the chapter. जो आपकी chapter है और जो मैंने आपको explain किया, जो chapter में लिखा हुआ है उसी में से हमने कुछ questions करने हैं और मैंने कुछ questions आपके लिए frame किए हैं that are very important because they are from the chapter. आपके चैप्टर में से ही है, आपके कॉम्प्रिहेंशन के लिए है, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। तो हम आज की जो वीडियो है उसमें उन्हीं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, उन्हीं क्वेश्चंस को हम करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ मैं आपको। चिल्ड्रन, इस चैप्टर में हमने सन, मून और स्टार्स के बारे में जाना, बहुत डिटेल में नहीं लेकिन हमने जाना सन के बारे में। सन की अपनी लाइट होती है, अपना हीट होता है। सन इज अ स्टार, सन इज द नियरेस्ट स्टार टू अर्थ एंड इट गिव्स हीट एंड लाइट टू अर्थ एंड इट्स अ सोर्स ऑफ लाइफ, इट्स अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर अर्थ and without sun there would be no life on earth. All these we have discussed. About moon also we have discussed that moon is the only natural satellite of earth. It revolves around earth and the rotation and revolution period of moon is same. moon जितने टाइम में अपनी प्लेस पर रोटेट करता है उतने ही टाइम में वो अर्थ का भी रेवोल्यूशन भी लगाता है। That is 27 days. Moon does not have its own heat and light. It reflects the light of sun and that's why it shines in the sky. It is not having its own heat and light. And then the depressions that we see on moon, जो हमें धब्बे दिखते हैं, they are actually craters. Then the first person who stepped on the moon was Neil Armstrong. Then we studied about phases of moon, the changes in the shape of the moon that takes place every month. The moon changes its shape. It is called phases of moon. About that also we talked. Then we studied about stars, that stars are very huge in size, but since they are very far away from us, they look small. They look very small, very tiny because they are very far off from us, but actually they are very big. Sun is also a star, so you can imagine कि एक स्टार जो हमारे जिससे हमारा अर्थ इतना गर्म हो जाता है, तो उतने स्टार्स अगर होंगे तो क्या हाल होगा, है ना। तो वो सारे स्टार्स हैं। Then we studied that stars have their own heat and light. Then stars, the group of stars, a group of stars is called constellation. They form a pattern in the sky. कुछ शेप बन जाता है, किसी की कोई ह्यूमन शेप, कोई एनिमल शेप या किसी भी चीज का जो शेप बनता है बिकॉज ऑफ द ग्रुप ऑफ द स्टार, दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टलेशन। और जो ग्रेट बेयर है उर्सा मेजर, दैट इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्स्टलेशन इन द स्काई। देन वी टॉक्ड अबाउट द पीपल हु स्टडी अबाउट मून, सन, स्टार, दे आर कॉल्ड एस्ट्रोनॉमर्स। ये सारा हमने इस चैप्टर में डिस्कस किया, है ना। देन इसकी एक्सरसाइज में हमने क्या किया, हमने किया फिल इन द ब्लैंक्स किया, जिसमें वी हैव टू चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस एंड देन वी हैव टू fill in the blanks.
इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं. Earth's permanent satellite is moon. Okay, moon is the Earth's permanent or natural satellite. Then in our solar system, sun is the largest object. In the solar system, sun is the largest object. Then number 3 is we can see stars with the help of a telescope. Okay, we can see stars with the help of telescope. Then number 4 is sundial help us to know time. Sundial helps us to know time. ये था हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन एंड फिलिंग द ब्लैंक्स. देन सेकंड वाज स्टेट ट्रू एंड फॉल्स. हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है. पहला क्या है? द पार्ट ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन हैज नाइट. Children, this statement is false. The part of the earth that faces sun has actually day. तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो क्या है? फॉल्स है. देन द सन इज द क्लोजेस्ट स्टार टू अर्थ. यस, द स्टेटमेंट इज ट्रू. सन इज द क्लोजेस्ट स्टार टू us. Rest of the stars are very very far away from earth. Only sun is the closest star from closest star to earth, to the earth. Then a third statement is the moon has its own light. This statement is again false because moon does not have its own heat and light. It reflects the light of sun. Then number 4 is the moon changes its shape at different times of the month. मैंने आपको बताया था मून की तो शेप चेंज होता रहता है. एवरी मंथ इट चेंजेस इट्स शेप. तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू. यस, द मून चेंजेस इट्स शेप. देन नंबर 5 क्या है? स्टार्स आर वेरी नियर टू अर्थ. चिल्ड्रन, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. स्टार्स आर नॉट नियर टू अर्थ. दे आर वेरी वेरी फार अवे फ्रॉम अर्थ. सो लास्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स. तो ये हमारा बी वाला था. नेक्स्ट हमारा क्या था? सी था. यू हैव टू सर्कल द थिंग्स दैट यू सी इन द स्काई. स्काई में जो जो चीजें आप देखते हो उसे आपको सर्कल करना था. तो इसमें क्या है? पहला था ईगल. यस, वी सी ईगल इन द स्काई, सो वी विल सर्कल इट. सेकेंड पिक्चर इज ऑफ सन. यस, वी सी सन इन द स्काई, सो वी विल सर्कल दैट ऑल्सो. थर्ड पिक्चर इज ऑफ अ हाउस. वी विल नॉट सर्कल दैट बिकॉज वी डू नॉट सी एनी हाउस इन द sky. Number 4 is the tiger. Then tiger also we will not circle because we do not see tiger in the sky. Next is moon. Yes, we see moon in the sky, so we will circle moon. Next is stars. Yes, we see stars in the sky, so we will circle that also. So we have completed this. Then D. Question number exercise D is answering the questions. First one is what does the earth revolve around? हमारा जो अर्थ है वो किसके चक्कर लगाता है? Children, the answer is the earth revolves around the sun. अर्थ ही नहीं, जितने भी प्लैनेट हैं वो सन के ही चक्कर लगाते हैं. So the earth revolves around the sun. Next is how are days and night formed? रात और दिन कैसे होते हैं? Children, the earth rotates on its axis. So while rotating, the part of the earth that faces sun, while rotating, the part of the earth that faces sun has day. The people living at that place, they have day. They can see sun. And the part opposite to that, the part which is not facing the sun, is having night. Okay. So in this way the days and nights are formed. Then next question is why does the moon appear to shine in the night sky? क्यों हमें मून चमकता हुआ दिखता है? Yes, the moon appears to shine in the night sky because it reflects the light of the sun. Yes, it reflects the light of the sun. So with this we have done the question answers. I have revised it for you. Now let's do the additional questions. That is from the content, from the chapter. Next question is
question number 4. It is question number 4. Why we cannot see stars during the daytime? Why we cannot see stars during daytime? Children, why we cannot see stars during daytime? हम दिन में स्टार्स क्यों नहीं देख पाते हैं? क्या रीजन है? स्टार्स तो दिन में भी रहते हैं. अगर वो आसमान में है अगर, तो हमें वो दिन में क्यों नहीं दिखाई देते? कहीं छुप जाते हैं, कहीं चले जाते हैं स्टार्स. नो, वी कैनॉट सी the stars during the daytime because of the bright light of the day, because of the bright light of the sun. सन के लाइट की वजह से हम उनको दिन में नहीं देख पाते हैं. ठीक है. So because of the bright daylight, we cannot see stars during daytime because of the bright daylight. दिन का उजाला होता है ना, ब्राइट डे लाइट होता है, इस वजह से हम स्टार्स को दिन में देख नहीं पाते हैं. ठीक है. वी कैन नॉट सी स्टार्स ड्यूरिंग डे टाइम बिकॉज ऑफ द ब्राइट डे लाइट. ब्राइट डे लाइट की वजह से हम स्टार्स को दिन में नहीं देख पाते हैं. होते तो है वो आसमान में, वो दिन में भी वहीं रहते हैं जहां वो रात में रहते हैं. रात में तो हमें सब आसमान में चमकते हुए दिखते हैं. तो ऐसा नहीं है कि दिन होते वो कहीं गायब हो जाते, कहीं चले जाते हैं. वो रहते वहीं पर है, पर ब्राइट डे लाइट की वजह से वो हमें दिखाई नहीं देते. इवन अगर क्लाउडी वेदर होता है, बादल होते, तो भी हमें दिखाई नहीं देते हैं. रात को भी नहीं दिखेंगे. अगर आसमान में बादल छाए रहेंगे, अगर क्लाउड रहेगा, क्लाउडी रहेगा स्काई, तो भी हमें स्टार्स नहीं दिखेंगे बिकॉज ऑफ द क्लाउड. बादलों की वजह से भी वो हमें नहीं दिखेंगे. इवन एट नाइट, हम रात में भी नहीं देख सकते हैं अगर क्लाउडी मौसम रहता है तो. ठीक है. तो रीजन हमारा दिन में नहीं दिखाई देते हैं बिकॉज ऑफ द ब्राइट डे लाइट. ठीक है. और कभी कभी रात में भी नहीं देख सकते हैं बिकॉज ऑफ क्लाउड्स. ठीक. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट इज मूनलाइट? हिंदी में हम चांदनी बोलते हैं. कि मून लाइट क्या होता है? व्हाट इज मून लाइट? मून का कोई लाइट भी है क्या? मैंने तो आपको बताया कि मून के पास अपनी खुद की लाइट है ही नहीं. तो व्हाट इज मून लाइट? मून लाइट क्या होता है? मून का लाइट है? चिल्ड्रन, एक्चुअली द मून रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन. जो सन की लाइट मून के ऊपर आती है तो उसी को मून क्या है? रिफ्लेक्ट करता है. और उसी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को हम मून लाइट बोलते हैं. ठीक है. द मून रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन एंड दिस लाइट इज कॉल्ड मून लाइट. ओके. आंसर में हम लिखेंगे द मून reflects the light of the sun. The moon reflects the light of the sun, and this light is called moonlight. This
is called moonlight. समझ में आया आपको? The moon reflects the light of the sun. मून जो है वो सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है. रिफ्लेक्ट करना मतलब जो सन की लाइट मून के ऊपर पड़ती है, ठीक है, उसी को वो रिफ्लेक्ट करता है. जैसे शीशा होता है ना, मिरर में आप अपना फेस देखते हो, तो एक्चुअली में क्या है, मिरर में क्यों आपको अपना फेस दिखाई देती है? क्योंकि मिरर के ऊपर जो लाइट पड़ती है वो लाइट को वापस फेंकता है, तो हमारे ऊपर आती है और हमारी इमेज उसमें दिखती है. तो वैसे ही सन की जब लाइट मून के ऊपर पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट करता है, वो शाइन हमें करता हुआ दिखता है, जिससे कि हम मून लाइट या चांदनी बोलते हैं. द मून रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन. दिस लाइट इज कॉल्ड मून लाइट. इसी लाइट को हम कहते हैं मून लाइट. तो ये 2 क्वेश्चंस मैंने आपको एक्स्ट्रा करवाए, है ना. अभी हम 2-3 क्वेश्चन और. ओके, नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6. Question number 6. Why stars appear small to us? Why stars appear small to us? हमें स्टार्स छोटे छोटे क्यों दिखते हैं? स्टार्स तो छोटे हैं नहीं, जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि स्टार्स आर एक्चुअली वेरी ह्यूज, वेरी बिग. जैसे सन है, सन इज वेरी ह्यूज, वो हमें छोटा थोड़ा इसलिए दिखता है क्योंकि वो हमसे दूर है, और अर्थ से वो बहुत 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 ज्यादा बड़ा है सन, ठीक है. उसमें बहुत सारे अगर हमारे अर्थ फिट हो सकते हैं, पर ये जो स्टार्स हैं ये हमें इतने छोटे 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 डॉट्स की तरह क्यों दिखते हैं? Why they appear small to us? Actually, they are not small. They are very big. They appear small to us because they are very very far away from us. वो हमारे पृथ्वी से, हमारे अर्थ से बहुत ही दूर है, इसीलिए वो हमें छोटी दिखती है, ठीक है. तो अब आंसर क्या लिखेंगे? स्टार्स appear small. Stars appear small to us because they are very far away from us. Because they are very far away from us. Okay? Stars appear small to us because they are very far away from us. us मतलब हमसे, मतलब हमारी पृथ्वी से, ठीक है. यहाँ अस का मतलब है अर्थ, हमसे, हमारी पृथ्वी से. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज सनडायल? चिल्ड्रन, आई डिस्कस्ड विथ यू, ये सनडायल के बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया कि जो इंडिया के कुछ किंग्स थे, उन लोगों ने उन्होंने सनडायल बनाया, स्पेशली राजा मान सिंह ने. तो उन्होंने सनडायल बनवाया. व्हाट इज दिस सनडायल? ये होता क्या है? एक्चुअली सनडायल एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, बड़ा सा, जो जिसके ऊपर जब सनलाइट आती है तो सन का जो शेडो उसके ऊपर आता है, उससे टाइम देखते हैं. सन का शेडो उसके ऊपर पड़ता है
तो जहां जहां सन का शेडो पड़ता है उससे टाइम की रीडिंग की जाती है, टाइम देखा जाता है. इट इज थ्रू सन डायल दैट द पीपल इन दोज डेज दे केम टू नो अबाउट टाइम कि अभी कितना टाइम हो रहा है, 2 पहर है कि 3 पहर है कि 4 पहर है. वो सन की लाइट उसके ऊपर पड़ती थी, सन का शेडो पड़ता था इनफैक्ट उस सन डायल के ऊपर. आपके वाराणसी में भी है, मैंने आपको बताया था. आपके वाराणसी में राजेंद्र घाट में मानसिंह म्यूजियम में एक सन डायल है. यू कैन गो एंड यू कैन वॉच देयर. ठीक है, तो ये सन डायल क्या है? सन डायल पे सन का शेडो होता है और जिससे कि हमें टाइम का पता चल जाता है. ठीक है, सो आंसर में हम क्या लिखेंगे? और सन डायल tells the time. The sun dial tells the time on the basis of the position of sun. On the basis of the position of sun. A shadow on the sundial helps us to know the time of the day. So we can add that a sundial tells the time on the basis of the position of sun. A shadow on the sundial. A shadow on the sundial जो sundial पे shadow पड़ता है helps us to know the time of the day. To know the time of the day. जैसे हम अपने रिस्ट वॉच में टाइम देखते हैं, रिस्ट वॉच का जो फेस होता है उसको हम डायल बोलते हैं ना, या आपका जो क्लॉक होता है वॉल क्लॉक, उसका जो सर्कुलर जो फेस होता है दैट इज द डायल ऑफ द क्लॉक. हमारे रिस्ट वॉच में भी सर्कल या जो भी शेप का जो उसका फेस होता है रिस्ट वॉच का दैट इज डायल ऑफ द वॉच. तो वैसे ही सन डायल, वो डायल है, सन का डायल है, और सन का शेडो जब उसके ऊपर पड़ता है तो जहां जहां उसका शेडो पड़ता है अकॉर्डिंगली हम टाइम को रीड करते हैं कि उस दिन पे क्या समय हो रहा है, क्या टाइम हो रहा है. जब आप देखोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा. अ सन डायल टेल्स द टाइम ऑन द बेसिस ऑफ द पोजीशन ऑफ सन. अ शेडो ऑन द सन डायल. शेडो किसका शेडो? शेडो ऑफ सन. ओके, तो अ शेडो ऑन द सन डायल हेल्प्स टू नो द टाइम ऑफ द डे. तो ये है सन डायल के बारे में. अब हम करते हैं नेक्स्ट. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विल डू वन वर्ड आंसर. अब हम करेंगे वन वर्ड आंसर. हमने 7 क्वेश्चन आंसर्स कर लिए. नाउ वी विल डू सम वन वर्ड आंसर. सो लेट्स डू वन वर्ड और इट कैन बी 2-3 वर्ड्स. First one, which is the nearest star to Earth? तो हम ऐसे लिखेंगे the, सिंपल सेंटेंस बना लेते हैं. The nearest star to Earth. क्या है? The nearest star to Earth is, the nearest star to Earth is Sun. Sun is the
नियरेस्ट स्टार टू अर्थ, अर्थ के सबसे करीबी, सबसे पास जो स्टार है वो है सन. ओके, नेक्स्ट इज द ओनली स्टार we cannot see at night. कौन सा ऐसा स्टार है, सिर्फ एक ही ऐसा स्टार है जिसको हम रात में नहीं देख सकते हैं. हम नॉर्मली स्टार्स कब देखते हैं? रात में देखते हैं. रात में हमें दिखाई देते हैं स्टार्स इन द स्काई, दे आर ट्विंकलिंग इन द स्काई, बट देयर इज ओनली वन स्टार दैट वी कैन नॉट सी एट नाइट. सिर्फ एक ही स्टार है जिसको हम रात में नहीं देख सकते हैं. कौन सा स्टार है वो? यस, सन. सन इज अ स्टार, और सन को हम रात में नहीं देख सकते हैं, बट सन इज ऑल्सो अ स्टार. सो सन इज द ओनली स्टार दैट वी कैन नॉट सी एट नाइट. ओके, नेक्स्ट. Which are closest neighbor? हमारा सबसे क्लोजेस्ट नेबर कौन है? सेलेस्टियल बॉडी में सबसे करीबी कौन है? सबसे पास वाला पड़ोसी कौन है? विच इज आवर क्लोजेस्ट नेबर? इट इज मून. मून जो है वो हमारे सबसे नजदीक है. स्टार्स, सन और बाकी प्लैनेट्स के कंपैरिजन में मून इज द क्लोजेस्ट टू अस. सो इट इज आवर क्लोजेस्ट नेबर. मून इज आवर क्लोजेस्ट नेबर. नेक्स्ट इज द फर्स्ट person, the first man, I can say, the first man who the first man to step on the moon. The first man to step on the moon. कौन सा ऐसा पर्सन था जिसने सबसे पहले मून पर पैर रखा? मून पर वो सबसे पहले गया. He put the first step on the moon. It is Neil Armstrong. आंसर क्या है? Neil Armstrong. Okay. Neil Armstrong is the first person to step on the moon. Okay. The nearest star to Earth, Sun. The only star that we cannot see at night, Sun. Our closest neighbor, Moon. The first man to step on the moon is Neil Armstrong. I hope you have noted. आपने ये समझ लिया. We will do some more. Next, small depressions seen on the moon are small depressions seen on the moon. जो मून पे ऐसे धब्बे धब्बे जैसे दिखते हैं वो क्या है? are known as, उनको क्या कहते हैं? They are called craters. They are called craters. The small depressions seen on the moon are known as craters. Then number 6 is the moon revolves around the moon revolves around. मून किसके चक्कर लगाता है?
the moon revolves around the earth. मून किसके चक्कर काटता है? अर्थ के. The moon revolves around the earth. And the changing shapes of the moon is called the changing shapes of the moon is called the changing shape of the moon. इसको क्या कहते हैं? Phases of moon. It's called phases of moon. Okay. The changing shapes of the moon is called phases of moon. So children, we have done 7 one-word answer also. Okay. The changing shapes of the moon is called phases of moon. The moon revolves around the earth. Small depressions seen on the moon is called craters. Total हमने 5 one-word answer भी कर लिए. And with this we come to the end of the video, today's video, and as well as the chapter. हमारा chapter भी complete हो गया और हमारा आज का video भी पूरा हो गया. ठीक है. और अब हम अपने नए वीडियो में स्टार्ट करेंगे एक न्यू चैप्टर. तो मिलते हैं अपने न्यू चैप्टर में. ओके. थैंक यू.